God. A big hand, everybody! A big hand. And thank you, Akshay Rajbir Divya. This was one wonderful act. So everybody, once more. Okay, they're saying once more. What do we do, actors? Once more. Yes, that is something unique. I know you have not seen before. So what's the actors? Yeah? Okay, it's not easy. Anyways, I would like to thank our actors, one more, Akshay, Rajbir and Divya, for this wonderful act, and our singer, Mr. Vardhan Singh, who has sung this song just now. Everybody, big hand for our actors. Well, firstly, thank you for calling us here. It's a beautiful event. Thank you to our producer, director, Shantiniketan Films. And we are really privileged to have been a part of this musical journey, because it's a very different concept. This film is amazing. It's a real challenging film for everyone. All the composers that have been a part of this film have really done a great job, and we were so lucky that we got this opportunity, and we had a great chance to work with such a legendary singer. I'd just like to call upon stage Sanjeev Chaturvedi ji, जिन्होंने इस फिल्म के गाने लिखे हैं. Yes. And Sanjeev ji, can you please come on He's stage? the most important part of the film and our song as well. For the entire team, I think I would like to thank all our producers, directors, and also I think this is the first time that such a bold subject is coming out for all you people. And I think Ishq Junoon is such a powerful film, and I think ये एक वो concept है जो लोगों के सामने पहली बार आएगा, लेकिन यूथ जो आज की जो यंगस्टर्स हैं वो लोग आई थिंक इस तरह की चीज़ों में इंडल्ज कर रहे हैं. ये फिल्म में एक बहुत अच्छा सोशल मैसेज भी है जो आप लोग जब देखेंगे तब आपको रियलाइज होगा. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट न्यू बिगिनिंग फॉर अ फैंटास्टिक फिल्म. Alright everybody, now it's time for me to call upon our producers and the director. So give a big hand and welcome on stage Mr. Anuj Sharma, our producer, Mr. Vinay Gupta, producer, and our director, Mr. Sanjay Sharma, who is behind this wonderful film. So please welcome our producer and the director on stage. I want the actors to be here so that we can, after this we are going ahead for the Q&A. So actors, please be here. Alright, media, here we have our producers and director and actors. Shoot your questions. Here we go for the Q&A. Yes sir, over to you. Yeah. And then an interview can be done outside, no problem. Thank you so much. You can take the pictures. So everybody, pose up for the picture. तो बेसिकली मेरे कैरेक्टर का नाम है वीर, जो मैं प्ले कर रहा हूँ. ये एक बहुत ही रिजर्व टाइप का कैरेक्टर है, जस्ट ऑपोजिट टू राजबीर्स कैरेक्टर, दैट इज़ राज. ये बहुत अपने अंदर रखता है, अपनी सारी बातें अपने अंदर रखता है, कभी भी इमोट नहीं करता किसी के सामने. और हमेशा जब भी इसको किसी चीज़ की खुशी होती है, गम होता है या कुछ भी होता है, वो अपने आप को होल्ड कर लेता है. कभी किसी चीज़ को बताता नहीं है, खुल के कभी सामने नहीं आता है. तो एक बहुत ही कंफ्यूजिंग कैरेक्टर है, जो एक एक्सप्रेशन कुछ दे रहा है एंड उसके दिमाग में कुछ है और वो बोल कुछ और रहा है. दैट इज़ ऑल अबाउट माई कैरेक्टर. मुश्किल तो बहुत था, बिकॉज मैं अपनी लाइफ में बहुत आउट गोइंग हूँ, बहुत मस्ती करता हूँ, तो बहुत मुश्किल था. बट बिकॉज ऑफ संजय सर, इट वॉज गुड. इट वॉज रियली. नहीं कुछ भी नहीं है, मेरी पहली मूवी है जी. बिल्कुल तैयारी बस कैरेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा जो तैयारी की हमने कैरेक्टर के लिए की है. कुछ हॉर्स राइडिंग के कुछ स्किल्स सीखे, बिकॉज आपने देखा होंगे कुछ शॉर्ट्स थे, बस दैट्स इट. सॉरी, देखिए दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट. मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी, मुझे ऑफर हुआ. आई सेड यस, इट्स अ बिग प्रोडक्शन हाउस एंड आई एम प्लेस्ड. को स्टार्स दे आर एक्सपीरियंस, तो आई वॉज लिटिल बिट वरीड कि हाँ भाई पहला दिन है, पहला शॉट है, आई डोंट नो कैसे करूँगा, बिकॉज वो लोग कैमरा फेस कर चुके हैं, मेरा पहला था. बट वेरी सपोर्टिव को स्टार्स, डायरेक्टर एंड क्रू ऑल्सो. तो इट वॉज गुड. ओनली ऋतिक रोशन. थैंक यू.
थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू। ये बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर था मेरे लिए, क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा है कि एक एक्टर की अपनी एक बेसिक नेचर और कैरेक्टर होता है। जब उससे अगेंस्ट जाकर के उसे कुछ कैरेक्टर बिल्ड करना पड़ता है तो वाकई में उसे एक क्रिएटिविटी में उसको एक इजाफा मिलता है। तो ये बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। और थ्रीसम जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हमने ये एक मैसेज दिया है यूथ को कि जो बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को देख कर, वो किन गहरी खाइयों में गिर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट होने के बाद। तो ऐसे एक मैसेज नहीं है, ऐसे बहुत से मैसेज हैं जो कि मैं रिवील नहीं कर सकता हूँ क्योंकि स्टोरी रिवील हो सकती है उससे। तो ये ज़रूर यूथ को एक मैं अपील करता हूँ कि ज़रूर देखने जाइएगा। एंटरटेन होने के साथ साथ एक बहुत डीप मैसेज है इसमें, एक नहीं 3 मैसेजेस हैं इसमें, तो वो आपको ज़रूर एक बार देख के पता चलेगा। जी, मैंने थिएटर किया है देवेंद्र दमन जी के साथ 3 साल चंडीगढ़ में। उसके अलावा मैंने द एडवेंचर्स ऑफ हातिम में और कबूल है में मेन लीड किया है। फिर इश्क जुनून की है। अभी एक और फिल्म कर रहा हूँ संजय शर्मा जी के साथ, पैरानॉर्मल, उसमें भी लीड कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने थोड़ा पुट ऑन भी किया है, एज अ कॉप का कैरेक्टर है वो। तो जी 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 इस वक्त हम इसी फिल्म के बारे में बात करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। वेलकम। मैं ये कहना चाहूँगा कि इंडिया की ये पहली बॉलीवुड फिल्म है जो थ्रीसम पर बेस है। और इसमें खैर ये तो है, इसके अलावा इसका जो कंटेंट है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगता है कि लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म, आई एम श्योर। इंस्पिरेशन तो देखो ऐसी बात है कि हम तलाश कर रहे थे कोई अच्छा कंटेंट मिले। बहुत सारी लव स्टोरीज़ आई हैं, ट्रायंगल्स आए हैं, काफ़ी कुछ आए हैं, 1 गर्ल 2 बॉय, बहुत सारी चीज़ें आई हैं। तो एक हमको कहीं से एक थॉट पता चला सम एक चीज़ से कि यार ऐसी कोई चीज़ है, तो लगा कि वाई नॉट टू डेवलप दिस। और वहाँ से हमको इंस्पिरेशन मिला और हमने फिर प्लान किया कि क्यों ना हम एक थ्रीसम पे एक मूवी प्लान करें। ऐसे बोल सीन डायरेक्ट करना कितना डिफिकल्ट रहा अपने एक्टर्स को समझाना और उन्हें कहना ऐसे सीन्स करना है? एक्चुअली ये बड़ा मेरे लिए चैलेंजिंग था क्योंकि मुझे दोनों ही चीज़ें देखनी थी कि ये बड़ा अच्छा भी लगे और वल्गरिटी भी ना लगे। और हम चाहते थे हम एक फील के साथ चलें, और फील जनरेट करना बड़ा मुश्किल होता है। अक्सर क्या होता है कि सेक्स के या सेक्स ओरिएंटेड जो सीन्स होते हैं उनमें अक्सर क्या होता है कि लोगों के वल्गरिटी आने के बहुत चांसेस होते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि इसमें वल्गरिटी ना आए, बल्कि कि एक जो फीलिंग है थ्रीसम की, वो एक फीलिंग जनरेट करने की हमने कोशिश की है पूरी तरह से। सर, इसके अलावा सेंसर बोर्ड आजकल काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गई है, तो फिल्म में इतने सारे बोल्ड सीन्स हैं और कहीं ना कहीं फिल्म मतलब ट्रेलर लॉन्च बहुत पहले हो गया था लेकिन काफ़ी डिले हुई है फिल्म, तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए क्या है कि जब हमारा सब्जेक्ट है थ्रीसम के ऊपर, तो डेफिनेटली जो हमारे सीन्स हैं वो हमारे सब्जेक्ट की डिमांड है। और इस चीज़ को लेके सेंसर के साथ हमारा काफ़ी विवाद हुआ। करीब हमें 3-3.5 महीने लग गए सेंसर के साथ, और उनसे मतलब डिस्कशंस करते करते अल्टीमेट जो हमें चाहिए था वो हमने रखा। उसमें हम अपनी चीज़ों पर अड़े रहे क्योंकि हम वो चीज़ें काट नहीं सकते थे, क्योंकि वो हमारे पिक्चर का पार्ट था। एक खाली शो पीस नहीं था कि हमने सिर्फ एक रखा है यूएसपी के लिए, वो एक हमारी पिक्चर का सब्जेक्ट था, एक हमारे पिक्चर का स्ट्रॉन्ग मतलब पॉइंट था जिसको हम नहीं काट सकते थे। और अल्टीमेट सेंसर ने भी उसके साथ एग्री किया, बोले ठीक है। और अल्टीमेट एंड में जो भी है चीज़ें मतलब पूरी हो गई और सेंसर ने उसको पास किया। हाँ जी, ए सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि जॉनर ये है तो उसको ए सर्टिफिकेट ही मिलेगा, और हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि इसको यू सर्टिफिकेट मिले। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। Ready? Yeah, ready, all set. Yeah, ready for you.
मैं पाखी का किरदार प्ले कर रही हूँ इश्क जुनून में, जो कि एक बहुत ही छोटे से शहर से है एंड शी इज़ वेरी एम्बिशियस एंड शी वांट्स टू अचीव लॉट ऑफ थिंग्स इन लाइफ, और उसके पास उतना टाइम भी नहीं है, उतना टाइम या हार्डवर्क करने में विश्वास नहीं रखती है. सो शी कम्स टू बिग सिटी एंड देन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो क्या करती है और फाइनली उसके साथ क्या होता है, लाइक यू नो उस बीच में. दैट इज़ द स्टोरी, लाइक दैट इज़ द कैरेक्टर आई एम प्लेइंग. अगर एज अ दिव्या में सोचूं तो बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि एज अ दिव्या में बहुत अलग हूँ. बट अगेन इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि ये हो रहा है लाइक वट एवर आई एम प्लेइंग द कैरेक्टर. लाइक पाखी इज़ नॉट लाइक यू नो ऊपर से टपक के एक लड़की आ गई है. पाखी इज़ टुडे जनरेशन गर्ल एंड इट्स हैपनिंग इन सोसाइटी. इट इज़ वेरी मच देयर. अगर आप देखेंगे फिल्म तो समझ में आएगा कि अरे यार आई मीन ऐसे तो हमने बहुतों को देखा है. तो इट वॉज चैलेंजिंग एज अ दिव्या, बट दैट इज़ वॉट एन एक्टर जॉब इज़ ऑल अबाउट, राइट. लाइक वही तो एक एक्टर का काम होता है, टू चैलेंज योर सेल्फ. मैंने एक तमिल फिल्म की हुई है ऑलरेडी विद नेशनल लाइक यू नो अवार्ड विनर डायरेक्टर के साथ. सो दैट वाज अगेन लाइक एक्सपीरियंस. बट बॉलीवुड में लाइक ये मेरा खुद का लैंग्वेज था और हिंदी फिल्म करना इज़ ऑब्वियसली अ चैलेंज. बट लाइक यू नो जब एज एन एक्टर अपने आप को देखते हो तो आप क्रिटिसाइज़ करते हो, नहीं यार यहाँ नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था मुझे, क्योंकि मेरी फर्स्ट फिल्म थी. तो जस्ट आई टुक इट एज अ लर्निंग एक्सपीरियंस एंड आई होप सबको पसंद आए. तभी तो मज़ा है ना. सिंपल लड़की अगर बोल्ड करे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है. डोंट यू थिंक सो? और मूवी मिलेंगी तो करना चाहेंगे अब या कुछ अलग करना चाहेंगे? लाइक हमेशा से अगर मैंने ये फिल्म भी की है तो सिर्फ इसलिए नहीं की है क्योंकि इसमें लाइक कपड़े कम पहने मैंने, या बोल्ड है, या थ्रीसम है. इसके पीछे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्टेक्स्ट और इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, इसलिए मैंने चूज़ किया. और मैं हमेशा से लाइक यू नो जो मैं चाहती हूँ अपनी लाइफ में कि मैं हमेशा से एक स्टोरी ड्रिवन लाइक यू नो सब्जेक्ट्स करूँ, स्टोरी ड्रिवन प्रोजेक्ट्स करूँ. अगर कोई ऐसी अच्छी कहानी आती है जिसमें कि थोड़े बहुत ये बोल्डनेस अगर आप इसको बोल रहे तो है, तो करूँगी. और भी बहुत कुछ करना चाहती हूँ यार, जैसे अभी तो शुरुआत. हाँ जी, क्या वजह है इसके पीछे पहले फिल्म बोल्ड चाहिए? इसके पीछे क्या राज है, देयर इज अ सीक्रेट बिहाइंड इट. एक्चुअली मैंने जब मैं मुंबई 1 साल पहले आई थी और मैं हमेशा से ऐसी फिल्म करना चाहती थी कि जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करे. लाइक यू नो आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर अ लव स्टोरी और जिसमें रोना धोना है, जो मैं हूँ. फिर मुझे लगा कि यार कोई फ़ायदा ही नहीं होगा ना जब मैं घर में भी ऐसी रहती हूँ और बाहर भी फिल्में ऐसी करूँ. तो मैंने ऐसे कैरेक्टर को चूज़ किया कि जिसको समझना मेरे लिए बहुत मुश्किल था. शुरुआत के शूट के 3 दिन तक यू वोंट बिलीव आई वाज क्राइंग लिटरली. आई वाज नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल. मेरे डायरेक्टर परेशान थे और पूरा यूनिट इनफैक्ट ये बात कर रहा था कि कौन सी लड़की को लेके आ गया, बिकॉज मैं परफॉर्म ही नहीं कर पा रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी पाखी को. देन फिर आई अंडरस्टूड एंड देन आई अंडरस्टूड लाइक इफ़ आई वांट टू बिकम एन एक्टर देन आई हैव टू प्ले डिफरेंट वेरियस कैरेक्टर एंड इसलिए चूज़ किया. Oh, they are very good. They are very good. Actually, I'm very lucky. I want to mention it. Like, I'm very lucky that I got these guys. बहुत सपोर्टिव थे और बहुत फ्रेंडली थे एंड वो हमेशा मुझसे डरे रहते थे. तो मैं हमेशा लीड ली रहती थी कि चलो ठीक है, यहाँ तक तुमको आना है, यहाँ तक तुमको आना है, फिर दूर जाना है. बस चिल यार. आपका क्या व्यू है आज की रिलेशनशिप्स के ऊपर? आपका क्या व्यू है? मुझसे मत पूछो, मैं बहुत बुरी हूँ इसमें. और रिलेशनशिप पे क्या व्यू है टुडेज जनरेशन में? I don't think so. Like you know, there is love remained anymore in the society, and not in fact in Mumbai. No way, no. जैसे कि फिल्म में आप लड़कों को सब कुछ चीट कर रही हैं. हाँ तो वही तो है, चीट मैं कर रही हूँ तो कौन? मुझे लड़के चीट कर रहे हैं? नहीं, मैं बहुत लैला मजनू टाइप की आया वो प्रेमिका रही हूँ और मैं बहुत रोनित होने वाली हूँ. बट नहीं रहा, प्यार व्यार नहीं रहा. लाइक नो अकॉर्डिंग टू मी देयर इज़ नो लव रिमेन. लाइक जो मेरे मम्मी पापा में मैं देखती हूँ, जो मैं लाइक यू नो मैं लाइक आई कम फ्रॉम बिहार के बहुत छोटे से शहर से हूँ मैं, औरंगाबाद. प्रॉब्ली आप लोग नाम भी नहीं जानते होंगे, महाराष्ट्र से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. तो जो वहाँ पे प्यार है, जो वहाँ पे बॉन्डिंग है, इट्स नॉट देयर इन टुडे. बट ठीक है, स्टिल लाइक यू नो वी कैन होप फॉर द बेस्ट, लाइक वी कैन फाइंड आवर लव समडे. थैंक यू.